Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I Aanchal Singh welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that yesterday we have already started with exercise 10.1 and we have done two questions also, and today we are going to start with the next questions. Okay, so let's start with the topic. First of all, let me write the exercise number, that is exercise 10.1. Exercise is 10.1 and today we are going to start with sum number 4, that is convert into grams. Convert into ग्राम. तो हमें को जो देखिए अलग अलग यू कैन सी इन द ए बी सी एंड डी पार्ट जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई है दे आर ऑल आर इन केजी. तो किलोग्राम्स में दी हुई है, हमें उसे ग्राम्स में चेंज करना है. सो फॉर दैट फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट नो दैट व्हाट केजी 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो लेट्स राइट डाउन. सबसे पहले हम ये लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. Just keep in mind this thing कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है. So starting with the question number 4, A part. Convert 1/4 kg into grams. 1/4 kg को हमें ग्राम में चेंज करना है. So that means 1 kg is equal to 1000 grams. Then 1/4 kg is equal to multiply by 1000. जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर दिया हो, अगर उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से. हमेशा हम कोई नंबर अगर फ्रैक्शन के साथ दिया होता है वी ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद numerator. So that means we are going to multiply 1000 with 1. So answer will be 1000/4. So 1 को हमने 1000 से multiply, we got 1000. 4 इधर नीचे कुछ नहीं, that is 4. So the answer is 1000/4. But देखिए अब ये as you can see दोनों आपस में डिवाइड, मैंने आपको बताया था when we were doing our fraction chapter. So at that time I have told you अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया है so that means the numerator is the dividend and the denominator is a divisor. So that means numerator को हम denominator से divide कर सकते हैं. So you can divide 1000 with 4. Okay. So after dividing 1000 with 4 you will देखिए ये भी हमारा जो आंसर आया that is in gram. बट इसको हम प्रॉपर नंबर फॉर्म में निकालेंगे कि what we are going to do is we are going to divide 1000 with 4. तो हम 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे. So 4 2s are 8, 2 बचा 0, 4 5s are 20, 0 is left. You will put it here. So the answer is 250 grams. So 1/4 kg is equal to 250 grams. तो आपको ये वाला पोर्शन आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं. This is the rough work. Okay, जो लाइन टू सेट, this is the rough work. So this is how you are going to convert the kg into grams. तो आप इसी तरह किसी एक फ्रैक्शन में जो फिगर दी होती है उसको ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं. सो देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके, सो 1/4 kg को हमें ग्राम्स में चेंज करना था. फॉर दैट व्हाट वी हैव डन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो हमेशा कोई भी नंबर अगर दिया होता है वी ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 1000 and 4 will be as it is. Now we are going to subtract, so no, we are going to divide it. Now we are going to divide numerator with denominator. After dividing 1000 with 4 we got the answer 250 and that is our answer. So the answer is 250 grams. Okay, chaliye moving next to the B part. Okay, you can just pause the video here and write down the solution. चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. The B part is
you have to convert 1/8 kg into grams. The B part में हमें 1/8 kg को ग्राम्स में चेंज करना है. 1/kg को ग्राम्स में चेंज करना है. So 1 kg is equal to 1000 grams. Okay. So 1/8 kg is equal to multiply by 1000. Just like A part हमने जैसे किया था वैसे इसमें भी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन फॉलोइंग द सेम रूल दैट वी विल मल्टीप्लाई 1000 विद न्यूमिनेटर नॉट विद डिनोमिनेटर. जब भी कोई नंबर दिया होता है उसको हमेशा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाई 1 विद 1000 वी विल गेट 1000 एंड द डिनोमिनेटर विल बी सेम दैट इज 8. ये हमारा आ गया ग्राम्स में आंसर. बट देखिए दिस इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर नंबर बाय डिवाइडिंग 1000 विद 8. तो हम 1000 को 8 से डिवाइड करके उसको प्रॉपर नंबर फॉर्म में ला सकते हैं. 1000 डिवाइडेड बाय 8. 8 ones are 8, 2 0. 8 twos are 16, 4 0. 8 fives are 40. Khatam. So the answer is 125 grams. So 1/kg is equal to 125 grams. So this is the answer. So देखिए हमारे पास पहले kg में था. Again same is in this question. 1/8 kg था that we have to convert into grams. So 1 kg is equal to 1000 grams. Now after multiplying 1000 with 1/8, and one more thing that is very important here that you will always multiply the number with the numerator. जो नंबर होता है उसको हमेशा हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1000 विद 1. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1000 विद 1 वी विल गेट 1000/8. सो द फ्रैक्शन वी गेट इज 1000/8 grams. बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ नंबर. तो उस फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करने के हमने क्या किया, हमने 1000 को 8 से डिवाइड कर दिया. सो आफ्टर डिवाइडिंग 1000 विद 8 वी गॉट द आंसर 125. दैट इज 125 grams. This is our answer. Okay. So देखिए ऐसे ही C and D part is also there. 3/10 kg and 2/5 kg. तो इनको भी आपको convert करना है in the grams. So that one you are going to do by yourself. The 3/10 kg converting 3/10 kg into grams. That is the C part. And converting 2/5 kg into grams, that is the D part. And both these part you are going to try by yourself. And if you will be having any problem, I'll sort out in the online session as usual. Chaliye. Now moving next to the fifth question. Chaliye, the fifth part is, okay, this is the B part of question number 4. You can just pause the video here and write down the solution. Chaliye, moving next to the sixth. Now we are going to start with question number 5. Question number 5 is add the following. हमारे पास question number 5 जो दिया है उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है. add the following. So देखिए in the A part kg and grams में 2 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है. That 25 kg 389 grams, 15 kg 925 ग्राम. इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो देखिए ऑलरेडी इट इज रिटन इन अ कॉलम फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है. ऐड द फॉलोइंग. That is kg and grams. 25 kg 389 grams, 15 kg 925 grams. So ये दोनों दिए हैं. We have to just add it. हमें इसको सिंपली ऐड करना है. 9 plus 5 is 14. 1 carry. 8 plus 2 10 plus 1 11. 9 plus 3 is 12 plus 1 13. 5 plus 5 is 10 plus 1 11. 2 plus 3 is 2 plus 1 is 3 plus 1 4. So the answer is 41 kg 314 grams. So
सो दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपल एडिशन। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं बेटा, सिंपल एडिशन है जो कि आपको करनी है। ओके, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी थोड़ा आएगा, तो आई जस्ट टेल यू। अभी मेरे को समझाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना याद रखिएगा, जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इन द ग्राम्स यू आर ऑलवेज हैविंग द 3 डिजिट्स। ग्राम में हमेशा हमारे पास 3 डिजिट्स होती हैं, 2 डिजिट्स नहीं होती है, 1 डिजिट नहीं होती। सो अगर कभी भी ग्राम दिया हो तो वहाँ पे हमेशा बस सबसे पहले जब भी कुछ ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी करना हो, जस्ट रिमेंबर दैट इन द ग्राम देयर मस्ट बी द 3 डिजिट्स। ग्राम में हमेशा 3 डिजिट्स होनी चाहिए। ओके, दिस इज द foremost important thing that you have to keep in your mind. And in grams we always have 3 digits. Okay, चलिए, सो द फिफ्थ के बी एंड सी पार्ट इज एज इट इज सेम, तो आप वो अपने आप करिएगा, जस्ट राइट योर सेल्फ। चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज ऐड। अगेन इट इज ऐड, बट इसमें देखिए कुछ अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन। चलिए, आई टेक क्वेश्चन नंबर, ओके सिक्स्थ का हम वी विल टेक क्वेश्चन पार्ट, ओके आई टेक पार्ट ए अगेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बाद द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ क्लास। ओके, जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप अपने आप सॉल्व करिएगा। ओके, 6th वन, ये पार्ट, एड 15 kg 380 ग्राम एंड 20 kg 475 ग्राम। 15 kg 380 ग्राम एंड 20 kg 475 ग्राम, इन दोनों का आपको क्या करना है, ऐड करना है। यू हैव टू ऐड इट, सो लेट्स ऐड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, kg और ग्राम, जिस 2 यूनिट में हमें आंसर निकालना है, दैट इज द 2 यूनिट्स। द फर्स्ट वन इज 15 kg 380 grams, second is 20 kg 475 grams. So ये दो हैं आपको जो you have to add both these weights. So now you have to calculate the total weight of both things. Okay, चलिए, now we are going to do it. 0 plus 5, simple addition है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। Okay, just it is a simple addition, nothing else. 0 plus 5 5, 8 plus 7 15, 5 is here, 1 will be carried here, 3 plus 4 7 plus 1 8. Okay, 5 plus 0 5, 1 plus 2 3. So the answer is, you have just keep in mind that you have to write the answer separately also. आपको अपना जो आंसर होगा वो अलग से सेपरेटली भी यू हैव टू मेंशन इट। ओके, आंसर इज 35 kg 855 ग्राम्स। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं था, इट वाज जस्ट सिंपल एडिशन ऑफ द 2 डिफरेंट यूनिट्स। kg एंड ग्राम्स में हमारे पास 2 यूनिट्स, 2 नंबर्स दिए हुए थे, 2 वेट्स दिए हुए थे। एक्चुअली 2 वेट्स वर गिवन इन द kg एंड द ग्राम्स। ओके, 2 डिफरेंट वेट्स वर गिवन इन द यूनिट kilograms एंड द ग्राम्स, एंड यू हैव टू ऐड इट एंड फाइंड द टोटल वेट। तो उन दोनों को ऐड करके हमें टोटल वेट निकालना, दैट वी हैव डन हियर। सो आफ्टर एडिंग 15 kg 380 ग्राम विथ 20 kg 475 ग्राम, वी गॉट द आंसर 35 kg 855 grams. So this is the answer that we have got. Okay, but अभी तो ये सिंपल था। अब जो इसमें अलग से जो चीज़ है, दैट एक्सेप्शनल चीज़, जो कुछ हटके चीज़ है, वो क्या है इम्पॉर्टेंट, वो अब हम इसी देखिए, इसी में बहुत सारे 6 पार्ट्स आर देयर। सो इसमें से हम जो अलग हैं थोड़े से, वो मैं आपको बताती हूँ, दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। दिस इज द सिंपल वन। तो इसमें तो कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू जस्ट डू द एडिशन नॉर्मली, जैसे अब आप आज तक एडिशन करते आए वैसे नॉर्मल एडिशन करनी है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ और थोड़ा सा अलग जो क्या चीज़ है इसमें, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। ओके, सो लिखिए, बी पार्ट दैट इज ऑल्सो द सिंपल वन, सी also simple one, D is little bit different. So we are going to start with the D part. Okay, so let's start with the D part of question number 6. So this A part, you can just pause the video here beta and write down the solution of A part of question number 6. Okay, now let's move to the D part, because B, C and A, B and C, 3 of them are the similar. So ये आप अपने आप try करिए. Okay, just
जो भी किसी भी सम के जितने भी पार्ट्स रह जाते हैं, दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली. दिस इज द होमवर्क एवरी टाइम. ओके, सो जो भी आप पार्ट करते हो, जो भी आप क्वेश्चंस करते हो, जिसके जितने भी पार्ट्स जो यहाँ पे सॉल्व किया, दैट इज ओके, बट द रिमेनिंग पार्ट्स दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली इन योर फेयर नोटबुक्स. ओके, okay, just remember whenever the school opens we are going to check it that whether you have done or not. चलिए हम स्टार्ट करते हैं डी पार्ट. So देखिए, in the D part you have to add 78 kg 60 grams and 12 kg 320 grams. Now important thing is here, just I'm writing it here. I'll just write the question, that is 78 kg 60 gram and 12 kg 320 gram. 12 kg 320 grams. So these two digits, these two weights you have to add. Just remember one thing, जो मैं step by step, just listen to me very carefully, watch my words. Okay, first of all we are going to distribute the units in kgs and grams. So देखिए, पहली है 78 kg 60 ग्राम. 78 kg 60 grams. Second is 12 kg 320 gram. 12 kg 320 grams. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है. द फर्स्ट वन इज 70 kg and 60 gram and that is the 12 kg 320 gram. When we were doing question number 5, तो मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी, that always remember that कि ग्राम में हमेशा 3 डिजिट्स होती हैं. तो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्राम्स इन 3 डिजिट्स. तो ग्राम्स में हमेशा कितनी डिजिट्स होती हैं? 3. Just speak it again once again. Speak it. Just revise it again and again. That in the grams we are having 3 digits. In the grams we are having 3 digits. In grams we are having 3 digits. Okay, तो ग्राम में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं? 3. So as you can see here 12 kg 320 grams. So इसमें ग्राम से हमारे पास 3 digits हैं. Okay, kgs में there is no compulsion. It can be 0 also, it can be 1 also, it can be 2 also. तो kg में कोई ज़रूरी नहीं है कि कितनी digits होनी चाहिए. But in grams there is a compulsion that there should be at least 3 digits in the grams. But if in any case there is only 2 digits or 1 digit in the grams, अगर ग्राम में 2 हो 1 हो, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अब जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज, देखिए यहाँ पे है 60 ग्राम्स. सो दैट मीन्स दैट वी आर हैविंग ओनली 2 डिजिट्स. सो दैट मीन्स वी हैव टू चेंज इट इनटू द 3 डिजिट्स. तो ये जो 60 है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो इसको हमें 3 डिजिट्स में चेंज करना पड़ेगा. हाउ? आइदर यू कैन जस्ट चेंज इट लाइक दिस. आई एम जस्ट परफॉर्मिंग हियर. यू कैन 60 दिया हुआ है, यू कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस. अगर आप इसके पीछे एक 0 लगा देंगे 3 डिजिट्स बन जाएगा? नो, 0 ही लगानी है, बट कैसे लगानी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. देखिए, द क्वेश्चन इज 60 डिजिट, बट इफ यू पुट 0 एट द लास्ट इट विल बिकम 600 ग्राम. तो 60 ग्राम क्या बन जाएगा? 600 ग्राम. तो अगर उसके पीछे आप 0 लगा देंगे, सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, सो दैट मीन्स ये 60 है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 6 0. If you write it like this, then it will be 60 gram only. अगर आप इसको 060 करके लिखेंगे तो वो 60 ग्राम ही रहेगा. बट अगर आप वो 0 है 3 डिजिट्स बनाने के लिए आप 0 लास्ट में लगा देंगे तो वो 60 से क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 600 ग्राम एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज द इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट. ओके, हमें चाहिए क्या? दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 60 into 3 digits. We have to write this gram into 3 digits. तो इस ग्राम को हमें 3 डिजिट्स में लिखना है. तो उसके लिए यू हैव टू पुट अ 0. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वेयर यू हैव टू पुट द 0. तो 0 लगानी कहाँ है? 0 लगेगी बेटा आगे. दैट इज 060 ग्राम्स. तो ये 60 ग्राम्स बनेगा. अगर आप 0 पीछे लगा दोगे तो इट विल बिकम 600 ग्राम्स एंड दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. ओके, तो सपोज अगर ये 60 ग्राम है तो 0 आगे लगा दे 60 ग्राम. सपोज यहाँ पे 60 ग्राम की वजह 6 ग्राम्स होता,
बट अगेन यू हैव टू पुट द ओके, अगर ये 6 ग्राम्स है यहाँ पे और आपको इसको 6 ग्राम्स को भी 3 यूनिट्स में 3 डिजिट्स में चेंज करना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पे भी 3 डिजिट्स लानी है। सो क्या करेंगे आप, यू विल अगेन गोइंग टू पुट द 0, 6 है उसके आगे 2 0 लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे नो, तो ये 600 ग्राम बन जाएगा, तो ये भी गलत है। 6 के आगे 0 एक पीछे 0, कैसे लगाएंगे, नो, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। here it is 6 gram only, so that means you will write it like this 006, so that is 6 gram and that is correct one। तो अगर 6 हो, 60 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, जो भी हो, 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 0 हमेशा आगे आएगी, पीछे नहीं आएगी, ये चीज याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट while doing the addition and subtraction, and I believe me most of the students they always do mistake in this only। तो ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं आगे, कि वो 0 पीछे लगा देते हैं 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए, वो कंप्लीटली वो 60 यूनिट 600 ग्राम्स बन जाता है, वो 6 ग्राम 600 ग्राम्स बन जाता है, एंड दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। सो दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ ग्राम्स बाय पुटिंग द 0 इन द फ्रंट, सो दैट मीन्स 0 आगे लगेगी, पीछे नहीं लगेगी। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको सबसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, बट इफ यू डिडंट गॉट इट यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो देखिए द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू ऐड 78 kg and 60 grams, 78 kg and 60 grams, so that means we have to convert this 60 gram into 3 digits by putting 0 here, so now it will be 60 grams। now we are going to add it, अब इसको ऐड करेंगे, 0 plus 0 is 0, 6 plus 2 8, 0 plus 3 3, 8 plus 2 10, 1 will be carried here, 7 plus 1 8 plus 1 90, so the answer is 90 kg and 380 grams। ये आपको अलग से लिखना is must, 90 kg 380 grams, this is the must। ओके, तो ये आपको हर आंसर के लास्ट में लिखना है नीचे। आई वॉज नॉट हैविंग द स्पेस हेयर, मैंने एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा स्पेस वेस्ट कर दी। सो आंसर आपको इसके नीचे अलग से लिखना है, द आंसर इज इक्वल टू 90 kg एंड 380 ग्राम्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन वॉज गिवन दैट इन दैट यू हैव टू ऐड 78 kg and 60 grams with 12 kg and 320 grams, but here we were having only 2 digits, but in grams we have 3 digits। तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 0 इसके आगे लगाई है। वी आर नॉट गोइंग टू पुट द 0 बैकवर्ड, बिकॉज इफ यू पुट अ 0 एट द बैक that will become 600 gram, but we need 60 grams only, so for that we have just put the here 0 in the front, so it will be 60 grams। this is the important point here, but after that we have done the simple addition। हमने simple addition जैसे हम करते आए हैं वैसे हमने addition की है, nothing so important in this। okay, so this is the answer of question number solution of D part of question number 6। so you can just pause the video here and write down the solution। This is the D part of question number 6। चलिए मूविंग नेक्स्ट, लेट्स डू वन मोर पार्ट ताकि आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके, एज यू कैन सी इन द ई पार्ट इट इज 9 kg 5 ग्राम एंड 90 kg 920 ग्राम। सो हम इसको भी ट्राई करते हैं। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन ऑफ ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू वन मोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ई पार्ट। The E part you have to add 9 kg 5 gram and 90 kg 920 gram, that is the E part। 9 kg 5 gram and 90 kg 920 grams। इनको आपको ऐड करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिवाइड इट kg एंड ग्राम। सो 9 kg 5 ग्राम 90 kg 920 grams। so you have to add it। अब इसको हमें ऐड करना है। अगेन सेम वही चीज। नाउ यहाँ पे हमारे पास केजी में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको अभी थोड़ी द इम्पोर्टेंट थिंग इज द ग्राम है।
क्योंकि एडिशन हमारे पीछे से शुरू होती है, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग बट इज हियर दैट इज द ग्राम. सो ग्राम्स में हम कैसे करेंगे बेटा? देखिए हेयर वी आर हैविंग 5 ग्राम बट इन द लोअर वी आर हैविंग 920 grams. So again I'm just going to explain it one more time so that if anyone is having any kind of doubt, so it will be clear. So देखिए ये हमारे पास ग्राम है 5 ग्राम, बट इन द ग्राम्स वी नीड 3 डिजिट्स. ग्राम में हमें कितनी डिजिट्स चाहिए होते हैं? 3. बट हेयर वी आर हैविंग ओनली 1. ओके, सो दैट मीन इसको हम 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू पुट द जीरोस. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वेयर वी आर गोइंग टू पुट द जीरोस, कि हमें जीरोस लगाने कहाँ हैं. देखिए वी नीड 500 ग्राम, 5 ग्राम हमें 5 ग्राम ऐड करना है. सपोज इफ वी राइट 2 zeros एट द बैक ऑफ द 5, एट द एंड ऑफ द 5, तो अब हम 5 के बाद अगर 2 zeros लगा देंगे तो वो 5 ग्राम बचेगा? नो, इट विल बिकम 500 ग्राम. ओके, वैसे ही अगर, लेकिन हमें तो चाहिए 5 ग्राम. सो इज इट करेक्ट? नो. अगेन अगर हम इस 5 के एक 0 आगे एक पीछे लगा दें, सो इज इट करेक्ट? तो ये कितना बन गया? 050, दैट मीन्स 50 ग्राम. बट वी नीड 5 ग्राम. सो इज इट करेक्ट? नो, इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लास्ट इज वी विल पुट इट लाइक 005. तो ये कितना हो जाएगा? 005 दैट इज 5 ग्राम. देखिए 005 दैट इज 05 5 005 0005, जितनी मर्जी आगे 0 हो, बट लास्ट में अकेला 5 लिखा है, सो दैट मीन्स दैट इज 5 ग्राम. तो ये क्या हो जाएगा? 005 इज 5 ग्राम. यस, इट इज 5 ग्राम, जो कि हमें रिक्वायर्ड है. ओके, सो दैट मीन्स फॉर कन्वर्टिंग दिस ग्राम इनटू 3 डिजिट्स वी आर गोइंग टू एड इट. ओके, बाय पुटिंग 2 zeros in the front. Then we will go it 005, that is 5 gram, then 920 grams. ओके, तो ये तो हो गई ग्राम्स की बात. तो देखिए अब हमारे पास केजीज में यहाँ 9 kg है, यहाँ 90 kg है. सो देखिए अब दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू पुट अ 0 इन द फ्रंट. जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाई थी आगे ताकि वो 5 ग्राम रहे, वैसे एज इट इज वी आर गोइंग टू पुट अ 0 हेयर दैट टू मेक इट 9. So 09 will be 9 but 90 will be 90. So that means हमें यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, तो हमने भी इसके आगे 0 लगा दी. Now all the equations are equal. Now we are going to solve it. 5 plus 0 5, 0 plus 2 2, 0 plus 9 9, 9 plus 0 9, 0 plus 9 9 again. So the answer is, the important, here we have to write the answer, that is 99 kg and 925 grams. This is the answer. That's why you are going to write the answer separately. तो आप अपना जो आंसर है वो सेपरेटली अलग से ज़रूर लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग द, आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, whatever it is, just write the answer separately. So this is the solution of E part of question number 6. So देखिए as it is, जैसे कि हमारे D part में दिया था वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व किया. तो here we were having only one digit in the grams but we need 3. So for that we have put 2 zeros in the front. तो हमने 2 0 आगे लगा दी जिसकी वजह से वो क्या बन गया? ग्राम्स. सो 005 ग्राम दैट इज 5 ग्राम. अगर हम 2 0 पीछे लगाते या एक आगे या एक पीछे लगाते दैट विल बी 50 ग्राम और 500 ग्राम. बट वी नीड ओनली 5 ग्राम, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पुट 2 zeros in the front and that will be 5 gram. Okay, so answer is, so after देखिए अब हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंपली जस्ट वी हैव कन्वर्टेड. ओके, वी हैव जस्ट टेकन द 3 वी हैव पुट द, यहाँ पे ग्राम्स भी हमने 3 डिजिट्स बना दिए. आफ्टर दैट वी हैव जस्ट डन द सिंपल एडिशन. उसके बाद हम जैसे सिंपली एडिशन हम करते हैं वही की है. ओके, 5 plus 0 is 5, 0 plus 2 is 2, 0 plus 9 is 9, 9 plus 0 is 9, 0 plus 9 is 9. And at last we got the answer, that is 99 kg 925 grams. Or this is the simple addition. Okay, so this was the solution of E part of question number 6. Okay, so there are some remaining parts also of question number 6, that is B, C and F.
B, C and F part of question number 6 and this question you are going to solve it by yourself. Okay. So this was our today's session class. Okay. I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.